Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important topic of this chapter, that is characteristics of cyanobacteria. So let's move to the classboard. Lecture 6.18. So dear students, characteristics of cyanobacteria. One of the most important topic of this chapter, one of the most, clear? As a long question, ये one of the most important topic है, characteristics of cyanobacteria. So dear students, cyanobacteria are the most diverse group of photosynthetic bacteria So first of all, let us understand this sentence. The most diverse, diverse means कि जिसमें बहुत ज़्यादा variety हो, मुख्तलिफ shapes हो, मुख्तलिफ तरह की उनकी appearance हो. So this is what we call as diversity. So this is the most diverse group of photosynthetic bacteria. Bacteria, dear students, हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं. The general bacteria, ठीक है, जिसको हम जो heterotrophic होते हैं, and the second category is the photosynthetic bacteria. Nutrition and bacteria में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था. Regarding the autotrophs, जो autotrophic bacteria होते हैं वो दो तरह के थे, chemosynthetic and the photosynthetic. तो उनमें photosynthetic bacteria का जो most diverse group है उनमें से एक है, that is cyanobacteria. They were previously known as blue-green algae. As blue-green algae. So previously, इनको कहा जाता cyan. Cyan means blue-green in color. तो dear students, शुरू में ये जैसे काई का नाम सुना होगा, हमें आज की डेट में पता है कि जो algae है that is a eukaryote, ठीक है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं. They are the plant-like protists. So शुरू में जब ये देखा गया इनको on the surface of the water or aquatic environments, so the scientists they considered or they thought that is a blue-green algae. लेकिन जब उसको स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो पता चला ये algae नहीं है. Algae जो है they are the eukaryote, जबकि bacteria they are the prokaryotes. So they resembled very much. और आज भी अगर हम देखें तो blue-green algae और cyanobacteria ये आमतौर पर इकट्ठे ही एक जगह के ऊपर पाए जाते हैं, आमतौर पर, clear? Not always. So इस वजह से इनको प्रीवियसली शुरू में ऐसा समझा जाता था कि ये blue-green algae हैं, हालांकि ये इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम इनके दूसरे एस्पेक्ट्स की, स्ट्रक्चर की एस्पेक्ट्स की बात करें, सो देयर इज़ अ लॉन्ग
or there is a large difference between them. Now, dear students, there are certain characteristics which are related to the cyanobacteria. So first of all, the one thing you have to remember is that the cyanobacteria are true prokaryotes. True prokaryotes means that they do not have that true nucleus. Clear? They do not have nucleus. They lack nucleus. They lack cell membrane or membrane bonded organelles. So ये true prokaryote है. Now their cell wall. First of all, now starting from their characteristics, the first thing is that the cell wall. If we talk about the cell wall, so they have gram-negative type of cell wall. Clear? ये MCQs के लिए mark कर लें इसको. They have means the cyanobacteria. They have gram-negative. अब तो negative आपको clear cut होगा, ठीक है? So जो ग्राम स्टेनिंग की बेस के ऊपर, जो क्रिस्टियन ग्राम ने सेल वॉल की बेस के ऊपर, उनकी सेल वॉल की स्टेनिंग की बेस के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया को जो है वो डिफाइन किया था, कैटेगराइज किया था. सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. सो उसकी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो दे आर ग्राम नेगेटिव. देयर सेल वॉल इज ग्राम नेगेटिव. सो दे हैव ग्राम नेगेटिव cell wall. Number one. If we talk about their shapes and appearance, if we talk about the shape and appearances of the cyanobacteria, so they appear or they have many shapes. They have many shapes. For example, some of them they are spherical, or some of them they are barrel shaped. Some of them they are rod shaped. Clear? Etc. etc. So that is, and some of them are arranged or are filamentous in form. Filamentous in shape. Filament का मतलब होता है जो filamentous होंगे, they are arranged in chains. जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो चेन्स की शक्ल में होंगे. द चेन इज कॉल्ड एज ट्राइकोम. उस चेन को कहते हैं ट्राइकोम. क्लियर? उसमें इस तरह से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आगे चल के डिटेल भी आएगी. सो इस तरह से चेन बनेगी, ठीक है. लेकिन इसकी खास बात, इनकी चेन्स जो सादा नहीं होती हैं, रादर दे आर कवर्ड विद a mucilaginous sheath. Chain, which is called trichome, is covered by
a mucilaginous sheath. ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ये सबसे अहम तरीन बात प्रैक्टिकल्स में भी जब इसकी स्लाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन में आप लिखते हैं ये दो बातें लिखनी होती है। तो उसमें 2 पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एक तो ट्राइकोम मतलब चेन ऑफ सेल्स which is covered by a mucilaginous sheath. So this is basically the mucilaginous sheath. Clear? These are the chain of cells. This is trichome. ये सारी की सारी क्या है? This is a trichome. और ये इंडिविजुअली ये ट्राइकोम जो है इसको हम कलेक्टिवली फिलामेंट भी कहते हैं। फिलामेंट की शक्ल की होती है। क्लियर? So mucilaginous sheath. So that is their characteristics. And the cyanobacteria may be unicellular, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और कॉलोनियल या फिर कॉलोनियल। जो कॉलोनियल होते हैं अरेंज्ड एज फिलामेंट्स, जैसे कि अभी हमने बात की फिलामेंट्स की शक्ल में। सो दैट इज देयर अपीयरेंस। क्लियर? सो दैट इज about the shape and appearance. Now, the third point, the third characteristic is of their size. तो लेंथ तो वेरी करेगी, वो तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया टू साइनोबैक्टीरिया, चेन टू चेन या जिस तरह से भी है वो वेरी करेगी, लेकिन हम बात करेंगे डायमीटर की। That remains almost constant. So they range between 1 to 10 micrometers in diameter, ठीक है, in diameter, ये उनकी खासियत है। तो इनका डायमीटर इसी रेंज पे होंगे, 1 से 10 माइक्रोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, ऑन एन एवरेज यूजुअली। नंबर 4, मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन्स कि हाउ टू दे यूज टू मूव, वो मूव कैसे करते हैं, हरकत कैसे करते हैं। सो पहली चीज तो याद रखना है, दे आर ए ट्राइकस, दे आर ए ट्राइकस। तो डियर स्टूडेंट्स, ए ट्राइकस का क्या मतलब है हम पढ़ चुके हैं फ्लैजिला की बेस के ऊपर। क्लासिफिकेशन मीन्स दे लैक फ्लैजिला, दे लैक फ्लैजिला। क्लियर? तो फिर कैसे मूव करते हैं? They move by forming gas vesicles, गैस वेसिकल्स बनते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, जिस तरह के वो एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन के जो लॉज आपने पढ़े थे, या वो मोशन के जो लॉज, ठीक है। सो उसी तरह से जिस डायरेक्शन में ये गैस वेसिकल्स रिलीज होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इनको हेल्प करते हैं मूव करने में। और and the filamentous cyanobacteria move by gliding। तो ये पानी के अंदर होते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, तो ग्लाइड करते हैं वहाँ पर। फिलामेंट्स क्या करेंगे? ये फिलामेंट है, सो पानी के अंदर इस तरह से ये ग्लाइड करते हुए मूव कर सकते हैं।
So this is how they used to move. Number 5 and the most important point, the most important characteristic. तो चूंकि ये सायानोबैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो आइए चल के डिस्कस करते हैं इनके जो फोटोसिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स को. सो फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेटिक सिस्टम, इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है तो इनके पास फोटोसिंथेटिक सिस्टम भी होना चाहिए. द फोटोसिंथेटिक सिस्टम resembles with यूकैरियोट्स. जो यूकैरियोट्स का है ना, और यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सिस्टम वो किस तरह से, as they have photosystem 2. इसको MCQ के लिए मार्क करें. कौन सा फोटो सिस्टम है? फोटोसिस्टम 2 and chlorophyll A. And the chlorophyll A. तो फोटो सिस्टम क्या होते हैं चैप्टर नंबर 11 में भी डिटेल से पढ़ेंगे, आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो क्लस्टर्स की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में एक जगह पे इकट्ठे होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. तो वो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम कहते हैं फोटो सिस्टम. और फोटो सिस्टम 2 ही हैं डियर स्टूडेंट्स. फोटो सिस्टम 1 जो कि 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 जो कि 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम 2 है. और मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, एज इन द यूक, जैसे प्लांट्स के अंदर होती है. द एसेसरी photosynthetic pigments are phycobilins. उनको कहते हैं, they are called phycobilins. ठीक है, जो एसेसरी पिगमेंट्स है, जैसे प्लांट्स के अंदर एसेसरी पिगमेंट्स कौन सी होती हैं? कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, वो आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे. जबकि इनके अंदर जो एसेसरी पिगमेंट है दैट इज फाइकोबिलेंस. अब जो फाइकोबिलेंस हैं वो इसमें 3 तरह के फाइकोबिलेंस हैं. What are phycobilins? These are the accessory photosynthetic pigments. एक इसमें phycoerythrin जो कि रेड कलर की पिगमेंट है. Then there is phycocyanin that is blue colored, and also allophycocyanin. तो ये इनके पास जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, लेकिन इनमें जो प्रीडोमिनेंट है वो फाइकोसायानिन है. The predominant accessory pigment is phycocyanin. इसको भी हम MCQ के लिए मार्क कर लें. phycocyanin जो कि ब्लू कलर की है, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्जी. वन मोर थिंग,
जो कि इनकी रिजेंबल करती है यूकैरियोट्स के साथ, दे डू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क करें, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? सो the photosynthesis in which water is used as an electron donor, उसको इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर यूज किया जाता है। डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। आपको याद है वो फोटोलाइसिस, तो जब फोटोलाइसिस होती थी तो लाइट पड़ती है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो 2 हाइड्रोजन आयंस और साथ में हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जाकर फॉल करते हैं और उनका जो गैप होता है उसको वो फिल करते हैं, जो एक्साइटमेंट फोटो एक्साइटमेंट के ज़रिए वो वहाँ से क्लोरोफिल के एटम से निकल चुके होते हैं। सो डिटेल आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो the photosynthesis in which water is used as an electron donor and oxygen is released, और इसमें क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ऐसी फोटोसिंथेसिस को कहते हैं द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे आपको याद होगा वाटर, तो जब इसके ऊपर क्या पड़ेगी? सनलाइट, सो दिस इज सनलाइट, इससे 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, so that is called as what we call as photolysis. Just for the sake of revision आपके लिए ये लिख दिया मैंने, क्लियर। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये उसके साथ रिजेंबल करती है। अब डिस्टेंस जो यहाँ पर अहम बात है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं एक इनकी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, क्लियर। The photosynthetic pigments and electron transport chain, आपको लाइट रिएक्शंस याद होंगे, वहाँ पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और जब ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं और वह एनर्जी इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, क्लियर। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इनकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसकी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसमें मौजूद होती हैं, एंड आर एसोसिएटेड विद structures called phycobilisomes. Phycobilisomes. So dear students, ये phycobilisomes क्या हैं? आइए देखते हैं इनको। So this is the structure of a cyanobacteria. That is its cell wall. इसकी cell wall, clear?
और इसके अंदर मौजूद है इट्स सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके इनर साइड पर मौजूद हैं इसकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। सो दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर? और फिर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और फिर उसके अंदर इसका मौजूद है द जेनेटिक मटेरियल एंड हियर आर सम राइबोसोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this one is the cell wall. This one is the plasma membrane. Clear? And this is the thylakoid membrane, जिसकी बात हो रही है कि जो सी photosynthetic pigments और electron transport chain इसके अंदर embedded होती है. This is the thylakoid membrane. अब अगर इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम डिटेल से देखें, थोड़ा सा फोकस करके देखें, सिर्फ इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो ये हाउ वुड इट लुक लाइक? तो चूंकि ये मेम्ब्रेन है तो आमतौर पर ये इट इज़ लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह से ये लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर मौजूद हैं फिर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, another partner of the electron transport chain is there. Clear? और dear students, इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद है the phycobilisome. No. First of all, I'm going to label this. These are the parts of electron transport chain, and this is the thylakoid membrane. इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होने की वजह से इनको एंसेस्टर्स ऑफ एल्जी कहा जाता है, ठीक है? खास तौर पर ग्रीन एल्जी, और ग्रीन एल्जी दे आर नोन एज द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चर्स, और सो दिस वेरी स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइकोबिलिसोम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखिएगा, ये जो सबको ये नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, और नीचे जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है दैट इज फाइकोसायानिन, फाइकोसायानिन, और यहाँ पर सेंटर में जो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है इसे कहते हैं एलो
फाइकोसायानिन, जिसके साथ ये दोनों अटैच्ड हैं। और फाइकोसायानिन आगे अटैच है, ये जो नीचे ग्रीन देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि आमतौर पर होती है क्लोरोफिल ए। तो ये जो सा स्ट्रक्चर आपको नजर आया, दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज फाइकोबिलिसोम। तो ये आपको वर्ड क्लियर हुआ, फाइकोबिलिसोम। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके अंदर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एम्बेडेड हैं, और दे आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स के जो लाइट एनर्जी है, जो सूरज से आने वाली रोशनी, द फाइकोबिलिसोम्स दे ट्रैप सनलाइट and transfer to photosystem। क्लियर? ये फाइकोबिलिसोम्स का काम है। तो ये विजिबल जो लाइट है उसकी काफ़ी अच्छी जो वैरायटी और जो रेंज है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइकोबिलिसोम। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक और पॉइंट, एक और कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज the storage granule, that is the storage granule। तो आमतौर पर इनके अंदर जो स्टोर सरप्लस फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। द सरप्लस फूड is stored in the form of glycogen। ये हम CQs मार्क कर लें, ठीक है। और एक और चीज, in reproduction, as far as reproduction is concerned, another characteristic, so they reproduce by two methods। चूंकि बैक्टीरिया हैं तो उनमें जो मेजर प्रोसेस है that is binary fission, जो डिस्कस हो चुका है डिटेल से, एंड फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा गया है, एकिनीड्स एंड रस्टिंग स्पोर एंड हार्मोगोनिया। ये जब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे नॉस्टॉक, तो उसके अंदर वो स्ट्रक्चर्स आएंगे। अभी फिलहाल वो यहाँ पर आप उसको सिर्फ मेंशन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी डिटेल आगे उसके अंदर मौजूद है तो मैं वहीं पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली फाइकोबिलिसोम्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सायानोबैक्टीरिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।